respected Professor Sabha Siddiqui ma'am, Head Department of Agriculture, Professor Alvina Faruqui ma'am, Head Department of Bioengineering, all the faculty members and my beautiful audience. Wishing you all a very refreshing afternoon. Today, I, Pragya Singh and my co-host Sakshi Thakur are going to be a host for this beautiful event of Idea Hunt for Small Entrepreneurship. We are really grateful that you're giving us your valuable time for being a part of this event. It gives us an immense pleasure to welcome you all here. Agriculture is not just about growing crops. It's about growing ideas that can transform lives and communities. Our today's event is all about business ideas and their conversion into a business entity. We have some brilliant minds ready to present their innovative ideas that have potential to revolutionize the agricultural sector. We have the gracious presence of our chief guest, Professor Sabha Siddiqui ma'am, and I'm not the chief guest. Our chief guest, Professor Alvina Faruqui ma'am, Head Department of Bioengineering, and for judging today's competition, we have Dr. Salman Ahmed Sir, Associate Professor and UG Coordinator, IIAST, Dr. Deepthi Srivastava ma'am, Associate Professor and Coordinator, DQAC, IIAST, and Professor Alvina Faruqui ma'am, Head Department of Bioengineering. We are really honored to have such a distinguished panel with us. The future of agriculture lies in harnessing the power of innovation and entrepreneurship, said Akinwumi Adesina. Agriculture is the backbone of world economy, and agribusiness is the engine that drives it forward. Now let's have a glance at the contribution of MSMEs in India's economy. The MSME sector contributes approximately 30% of India's GDP. This reflects the critical role that small and medium-sized enterprises play in the Indian economy, driving growth, innovation, and job creation. MSMEs are a major source of employment in India, providing jobs to over 110 million people across the country. This makes the sector the second largest employer in India after agriculture. Keeping this in mind, the Government of India has been actively promoting the growth of MSMEs through various schemes such as the Atal Innovation Mission, Atal Tinkering Labs, Pradhan Mantri Mudra Yojana, Startup India, and the Credit Guarantee Fund Scheme for micro and small enterprises. The Atmanirbhar Bharat Abhiyan has also provided a significant boost to MSMEs with collateral free loans and other financial support. Thus, to encourage the young and creative minds, our department has tried to provide a platform to present their innovative ideas. Now let's quickly get over to the rules and format of the competition. Each participant will have 6 plus 2 minutes to present their ideas. The timer will go off on 6 minutes and they'll have 2 minutes more to wrap up. Without further ado, let's get started with the presentations. Our first presenter is Azharuddin Ayubi. He will be presenting idea on floriculture and ornamental entrepreneurship. Please, Azharuddin. Please put your hands together for Azharuddin. Assalamualaikum and a very good afternoon to all of us here. Myself, Azharuddin Ayubi from BSc Honors Agriculture, to the respected judges, HOD ma'am, and to all my teachers, and to my seniors, and to all my juniors. Today I am here to present my idea on the floriculture ornamental entrepreneurship. So before putting my idea ahead, I would like to ask the question: how many of you amplify your plants now? So amplify means a person who loves plants, and plantsman means a mature or someone who is passionate about gardening. So my idea is somewhat for those who are really passionate about gardening. So the main concept of my idea is raising new plants from pre-existing sources. Now you must be wondering what's new or what's innovative in the idea. So
So the raw material I'll be using in my idea is the seeds produced by our own garden. So the main objectives of my idea are our raw material will be the seeds, cutting, tubers and corms and circle from the pre-existing plants or the ex-plants from a garden. And the other essential material required to be the nursery pottery, potting mixture which can consist of vermicompost and cocoa pit. And the main theme or main concept is time variation and with some item too as well. So it is low investment and high rated concept. If you talk about raising of funds, so nursery pot will be cost of rupees 35 of 2,370 and the big one or the orange seed will be cost of rupees 60. For potting mixture, vermicompost and hardy cost of rupees 4.2 per kg. And if you talk about cocoa pit, it will be easily available online as well as offline. We can get easily by rupees 99 per kg. And if you talk about soil, so Sarinam will be the most suitable for the cultivation of agriculture. And if we talk about what about market, how we supply our goods, so it can be directly supplied to the nearby nurseries or it can be resold to the online medium as well. If we talk about cost of investment, initially as I stated that the nursery fruit trees will be cost up to 50, vermicompost will cost rupees 4.2 per kg, cocoa pit rupees 9 rupees per kg, and seeds will be our own by the garden will pluck the garden seeds and the cuttings and the suckers from our own garden. So it will be hardly cost of 100 or 50 for if I talk about 2 bonus because as I started with only two trays, so it charges me about rupees 100 to 50. And now if I talk about implementation of result, these are result of my own implementation idea. Here are some nursery bouquets of some marigold saplings, as you can see here. And these are some pods of cactus I adopted in my own garden. And you may also find us on social media. I would like to request you all to please scan the QR code given in order to check our more products. As you can find some craft ideas as well on my Instagram page. And here are some pots as well as some artworks you may usually find on social media, and here are some customized pots. You may customize your pots also, and I will plant the plants you want in the pots. So that's all I wish to tell you. Thank you. You are already into it. Now we'll have a question out. Yes, sir. If you have any question, Can you cut down the price of that tray? ma'am, it charges of yes, now like from market I buy it only for 250. From market I take it off 250 only. I can't reduce it now. She's saying you can replace, you can use some waste materials. Instead of the food waste, Yes. yes, only can use. Any other question? Would be a competitor that research the market. Very sure about that. For starting the business, that is I think the most difficult point to survey the market. Survey the market Do you have other working in the same field in your area or somewhere? Not in Lucknow. nursing online. Online. Instagram. कोई कंप्यूटर नहीं है आपका? Sir, नहीं कि बेटे बहुत है आपने सर्च नहीं किया? yes, I calculate environment. Got your customers through Instagram. Yes, sir. I also make nurses
BMNS is certified person and BMNS is person. He's a kind person. What kind of plan you are selling? More indoor or class person, marigold, cactus, and types of cactus person. Thank you, sir. That was an insightful presentation. Let's move on to our next participant. Neeraj Kanodia will be presenting on the topic microgreen. Please put your hands together for Neeraj Kanodia and Steve. Good afternoon, teachers, judges, friends, and one and all present here. My name is Saugata Maurya, and I am from BSc Agriculture third year. Today, I am here with my team to share our business idea with the help of a wonderful presentation. The main aim of our presentation is low budget, high profit. Our present. Your name is Neeraj Kanodia. My name is Saugata Maurya. टीम है वो ये लीडर है कनौजिया का टीम मेंबर. Our presentation is based on microgreen, and we will discuss some important or some main content such as what are microgreens, how we grow them effectively, what nutrient content it has, costing of growing microgreens. Sir, it's a wrong thing. Sir, we ऑर्डर चेंज हो गया है पूरा चेंज. छोड़ देगा खिंचवा लिए Good afternoon, teachers, judges, friends, and one and all present here. My name is Saugata Maurya, and I am from BSc Agriculture third year. Today, I am here with my team to present our business idea in front of you with the help of a wonderful presentation. The main aim of our presentation is low budget, high profit. Our presentation is based on microgreens, and we will discuss some important contents like what are microgreens, how we grow them effectively, and what nutrient content it has, costing of growing microgreens, and in last, value in international or Indian market. So I would like to invite my friend Neeraj Kanodia to share detailed information about this content. हम खा रहे हैं जंक फूड और हमारे पेरेंट्स खा रहे हैं डायबिटीज की गोलियां. प्रॉब्लम क्या है? न्यूट्रिशन की कमी. हमारे फूड में न्यूट्रिशन की कमी. Consuming junk food regular can be lead to various health disease problem included like weight gain, मोटापा में पड़ना, increases the risk of chronic diseases like diabetes, heart disease, certain cancer, nutrition deficiencies and balance.
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है यदि आप 5 कटोरी सब्जी रोज खाते हैं तो इन क्रॉनिक 90% चांसेस हैं कि इन क्रॉनिक डिजीज से आप बच सकते हैं। क्या हम में से कोई है जो 5 कटोरी सब्जी रोज खाता है? शायद नहीं। तो यदि हम 5 कटोरी सब्जी अपने डाइट में शामिल भी करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग और टाइमिंग और यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड जो हमारे फार्मर्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का और फंगिसाइड्स का, टाइमिंग देखिए और कॉस्टिंग देखिए, उसमें लगने वाला समय देखिए, जिसकी वजह से हमें हमारे सब्जियों में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जा रही है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपके पास लेके आए हैं एक कॉन्सेप्ट माइक्रोग्रीन। व्हाट आर माइक्रोग्रीन? माइक्रोग्रीन्स क्या होते हैं? माइक्रोग्रीन्स आर यंगेस्ट न्यूट्रिशन डेंस वर्जन ऑफ लीफी ग्रीन्स, हर्ब्स एंड अदर वेजिटेबल्स। ये वो स्टेज होती है प्लांट्स की जो स्प्राउट से आगे होती है और मैच्योर प्लांट से पहले होती है। मतलब जब प्लांट 2 पत्तियों से निकलता है, पत्तियां निकल आती हैं, उसे ट्रू लीव्स कहते हैं। ट्रू लीव्स, उसमें 4 से 40 गुना तक की न्यूट्रिशन बढ़ जाता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 4 से 40 गुना तक की न्यूट्रिशन बढ़ जाता है। 4 से 40 गुना तक की न्यूट्रिशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम 5 कटोरी तो सब्जी नहीं खा सकते, लेकिन 20 ग्राम आप माइक्रोग्रीन्स खा सकते हैं, अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये कुछ न्यूट्रिएंट कंटेंट्स हैं जो हमने शामिल किए हैं। ब्रोकली में देखिए विटामिन ए, सी, ई एंड के, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड, फॉस्फोरस, जिंक, सोडियम, सल्फर, जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल्स हैं। हम 4-5 कटोरी सब्जी तो नहीं खा सकते, बट 20 ग्राम माइक्रोग्रीन्स जो है अपनी डाइट में जरूर शामिल कर सकते हैं। आगे की बातें हमारे जैसे कि आप जानते हैं हम इसको उगाए कैसे। जैसे कि फर्स्ट टाइम में सोइंग है, इस सोइंग के लिए हमें ट्रे और मिट्टी की जरूरत पड़ती है। तो उसके बाद 2 से 3 दिन में उसकी अंकुरित हो जाती है। फिर माइक्रोग्रीन उसमें 6 से 7 सेंटीमीटर तक की लंबा होने उसकी हार्वेस्ट हो जाती है। फिर इसके कॉस्टिंग में लागत कितनी आती है? जैसे एक ट्रे की लागत होती है 6-6.5 रुपये और इसमें राइस रखते हैं 5 रुपये। जैसे हम कोकोपीट बीज करते हैं बट उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ सकती है, इसलिए 0.25 50 ग्राम पर ट्रे एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 10 रुपये पड़ता है, तो पैकेजिंग 10 रुपये पड़ता है, इसलिए टोटल का साथ ही 56 रुपये जाता है। फिर आइए कुछ मार्केट वैल्यू देखते हैं। जैसे इसकी ऑनलाइन रेट, एक ट्रे 50 ग्राम की कीमत, जैसे मटर है इसमें 50 ग्राम कीमत 135 रुपये है। फिर इसमें वो है मिक्स हार्वेस्ट 250 रुपये की है, और इस ब्रोकली माइक्रोग्रीन है 99 रुपये 80 ग्राम। तो अगर मैं आप लोग को बताऊं कि हमने ये माइक्रोग्रीन्स का कॉन्सेप्ट एज अ बिजनेस आइडिया क्यों लिया है, तो इसके कुछ मेन रीजंस हैं। हमने बीच में पढ़े जैसे न्यूट्रिशन वैल्यू, अभी हमारे मेडिकेशन ने कहा इसमें 4 से 40 गुना ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। फिर आता है स्पेसिंग एफिशिएंसी, तो आप इसे कहीं भी छोटी जगह से शुरुआत कर सकते हैं और प्रॉफिट और टाइम के साथ इसे आप बढ़ा सकते हैं। थर्ड आता है स्पीड ऑफ ग्रोथ, जैसा कि इसकी हार्वेस्टिंग 1 to 2 वीक्स में हो जाती है और ये कंज्यूम करने के लिए रेडी हो जाता है। फोर्थ है फ्लेवर एंड वैरायटी, अलग अलग वैरायटी के जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनके सबके माइक्रोग्रीन्स आते हैं। तो फिर अगर आप उनको सैलेड की तरह भी यूज़ करते हैं तो फिर ये जो है फ्लेवर इन्हेंसर का काम करते हैं। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लो कॉस्ट और मोर इनकम, और वी कैन से मोर प्रॉफिट। तो अगर इसमें हम देखा जाए, अगर आप लोग लो कॉस्ट में अगर ग्रो कर रहे हैं तो फिर कम से कम आप 1 किलो तो ग्रो कर ही लेंगे। और अगर आप ऑनलाइन मार्केट में इसको चेक करें तो फिर 1 किलो की कीमत 1000 से 1500 रुपये बीच में सेल हो रही है। तो फिर ये हमारे थे कुछ बिजनेस आइडियाज़ जिनकी वजह से कोई भी अपना माइक्रोग्रीन का बिजनेस, जो भी एग्री बिजनेस में प्रेशर है तो वो भी आसानी से स्टार्ट कर सकता है। थैंक यू। ये स्टोरेज कैसे करोगे? फ्रेशली
मैम मोस्टली 5 से 10 दिन की इसकी सेट लाइफ है। मैम टेम्परेचर आप मेंटेन करेंगे, अगर आपको सेल करना है, आपको कहीं बाहर भेजना है तो 4 डिग्री से भी कम रखेंगे तो ये फ्रेशनेस 5 से 10 दिन तक ये चल सकता है। मैम 10 दिन तक। मैम उसके लिए आपको फिर ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में मतलब कॉस्ट भी बढ़ जाएगी ना। ये लोएस्ट कॉस्ट है, लोएस्ट कॉस्ट है। मैम अभी तो मैंने जो चेक किया है वो फ्रेश ही है। मैंने उगाया है घर पे। हम दिक्कत ये है कि इसको स्टोरेज करना आपके लिए प्रॉब्लम है। जो स्टोरेज का है वो किया जा सकता है, जैसे कि अभी हम अपने यूनिवर्सिटी में ग्रो करके अपने स्टोर में बेच सकते हैं, और जो बचा मेरे हम शाम को हम अपने ही यूनिवर्सिटी के उसमें रख सकते हैं फ्रीजर में। हम ट्रांसपोर्टेशन में लिए, अगर मान लीजिए आप ट्रांसपोर्ट कर रही हैं तो क्या कर रहे हैं तो फिर टेम्परेचर का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। फिर उसके लिए एक आइडिया ये भी हो सकता है ना, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करके रखें। व्हाट्सएप पे मान लीजिए हमारे यहाँ आसपास में जो लोग हैं उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। व्हाट्सएप पे आप जितनी ज़रूरत है उनको पर डे दे सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। Thank you so much, Nate. That was a thought-provoking idea. Now let's move to our next participant, Kripa Shankar Shukla and his team, who will be presenting on the topic Jute, Nature's Green Gold and its Farming Wonders. Please put your hands together for Kripa Shankar and his team. मेरा टॉपिक है जूट प्रोडक्शन का है मेरा टॉपिक। इसमें हम जूट के प्रोडक्ट बनाएंगे। या जूट को जो है प्रकृति का हरा सोना कहा जाता है, जो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होता है और काफ़ी प्रोडक्ट करने के लिए काम आता है। इससे हम बैग्स बनाएंगे और घरेलू सजावट के लिए चीज़ें बनाएंगे जो हम मार्केट में ले जाएंगे। जो काफ़ी ज़्यादा है बैग और वॉलेट्स जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। इसे हम 4 से 6 महीने के भीतर
सब्सिडी जो है 30% देती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के द्वारा दी जाती है। इको फ्रेंडली बैग्स रहेंगे जो हम प्रोवाइड करेंगे और काफ़ी सही रेट में प्रोवाइड करेंगे, जो मार्केट में 700 से 800 के बीच मिलते हैं। अगर मेरे ऐप से या किसी वेबसाइट से मेरी वेबसाइट से लेंगे तो उसे 30 या 20% डिस्काउंट में देंगे। You are doing this work कर रहे हो आप? जी क्या वेबसाइट है आपकी? क्या वेबसाइट है? अभी तो सर नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? क्या काम के क्या काम जो कर रहे हो तो जूट की प्रोडक्ट पे बैग और वॉलेट और जूट क्राफ्ट उसको सेल कैसे करते हैं? स्थानीय बाजार जो लोकल रूरल एरिया उनसे कॉन्टेक्ट करके और अर्बन मार्केट में कॉन्टेक्ट करके। आपका काम इस पर चल रहा है? जी प्रॉफिट होता है? जी क्या क्या प्रोडक्ट है? सर बैग्स हैं, वॉलेट्स हैं और जूट क्राफ्ट्स हैं। लेकर आए हो? ये सब तुम बना रहे हो? बना जी बना रहे हो तो लाना चाहिए ना, तो एक प्रोडक्ट लेकर आए हो। मैम वेबसाइट के थ्रू और सोशल नेटवर्क के थ्रू और स्थानीय बाजार वेबसाइट के थ्रू बनानी है। जमीन आपस में लोकल में बेच रहे हो? जी जी चलो ठीक है, कर रहे हो ना, चला घबरा क्यों बोल रहे हो? लेकर आना नहीं कर रहे हैं आप लोग, दिखाना चाहिए खाना नहीं बचा रहे हो, कर रहे हो तो क्या बना रहे हो? आप बिक जाते हैं हमारे कुछ अभी गोल्डन ले लेते हैं, आप बिक जाते हैं लेकिन आना नहीं है ना। अच्छा पहली साइड पे और एक मिनट सबसे पहले और बढ़ चलो ये डिपार्टमेंट क्या दिखाया? आइडिया फंड फॉर स्मॉल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जी थैंक यू। इसी सारे एडमिशन लिया एस यहाँ से नहीं करे हो? नहीं तब ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इस बार ठीक है ठीक है। Thank you, Prabhakar sir. Now I would like to call Tamanna Jalil Khan and her team to present their idea on integrated farming systems. Put your hands together for Tamanna and Good afternoon, our chief guests, judges, HOD ma'am, and our respected faculty members and my friends. My name is Tamanna Jalil Khan. I am the team leader with my team members. Myself, Seenu Rajput. Myself, Vishwakarma Shilpa Murali. We are the student of BSc Honours Agriculture, 3rd year, 5th semester. Our topic is integrated
fish, hens and goats. Our concept is sustainable agriculture production कि हम जो भी हम आइडिया दे रहे हैं उसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ करें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उसकी हो सके। हमको कम लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्रोड्यूस करनी है, बनानी है। तो इन्वेस्टमेंट सबसे पहले है फिक्स होगा, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट में। फिक्स में अगर आपका खुद का लैंड है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप खरीदो, उसमें आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास लैंड नहीं है तो आपको लैंड बाय करना पड़ेगा। और वेरिएबल कॉस्ट में फिशेस वगैरह तो हमको लानी पड़ेगी बाहर से। गोट्स, हेल्स, उनका कॉस्ट इसमें दिया है कि कैसे कैसे हम उनको लेकर आएंगे, किस प्राइस में, और उनकी फीडिंग वगैरह कैसे होगी। फिशरीज अगर हमें करना है तो गवर्नमेंट भी हमें सब्सिडी बहुत मदद देती है, 60% गवर्नमेंट से हम लोन ले सकते हैं अगर फिशरीज करनी है तो उसका गवर्नमेंट हमें 60% सब्सिडी देती है। हमें ये फिश ब्रीड है कुछ जिससे हम यूज़ करें ताकि हमें ज़्यादा बेनिफिट मिले और ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिले। उसकी एक ब्रीड है रोहू, मैरिगल एंड कतला। रोहू है जो पॉन्ड के अपर पोर्शन पे रहती है और कतला है जो मीडियम पोर्शन पे रहती है और मैरिगल है जो बॉटम सरफेस पे रहती है। तो इससे अगर फीड की कंपटीशन बहुत कम हो जाती है। और इसी एक और एडवांटेज है, अगर मानिए कि हम एक ही फिश अगर डाल रहे हैं पॉन्ड में तो फिर हमें शायद अगर मार्केटिंग में दिक्कत होगी, अगर मार्केटिंग में ना बिके तो फिर हमारा लॉस हो जाता है। इसलिए हम 3 ब्रीड ले रहे हैं ताकि अगर रोहू ना बिके उतने में हमें प्रॉफिट ना मिले तो कतला और मैरिगल से मिल सके। उसकी फीडिंग और हैंड फार्मिंग जिस तरीके से हम स्टोरीज बना करके कर रहे हैं तो हैंड फार्मिंग में डिफरेंट तरीके के फील्ड्स उसके भी यूज़ करेंगे। और ये गवर्नमेंट उसकी ब्रीड है जो कि गवर्नमेंटेड ब्रीड जो होती है, जो प्राइवेट ब्रीड्स होती हैं उनसे सस्ती मिल जाती हैं। तो जो ये CRI-BRO कैरी ब्रो जो है ब्रीड वो अदर ब्रीड्स के कंपैरिजन में लेस टाइम में मोर वेट गेन कर लेती है और इसकी फीडिंग भी बहुत कम है। जैसे अदर ब्रीड्स होती हैं लगभग 2 महीने में अराउंड पूरा 2 मंथ लेती हैं ग्रो होने में, लेकिन ये वाली ब्रीड जल्दी हो जाती है। और इसके सभी तरीके की जैसे कि उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रॉपर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, हाउसिंग देखना है और उनका फीडिंग और न्यूट्रिशन का हमें ध्यान देना है। हेल्थ और हाइजीन बहुत मेंटेन करके रखनी होती है क्योंकि जो छोटे स्टेज पे जब होते हैं चिक्स तो बाहरी एक्सट्रीम कंडीशंस, बाहरी कंडीशन से, एनवायरमेंटल कंडीशन से जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। तो उनका भी हमें प्रॉपर मेंटेनेंस देखनी है। देन इसके बाद में आता है गोट फार्मिंग। गोट फार्मिंग में भी हम 2 ब्रीड रख रहे हैं, बीटल और सिरोही, 10:1 की रेशियो में। तो बीटल और सिरोही जो होती है वो वेट गेन 5 to 6 मंथ में आसानी से कर लेती हैं और इनका ज़्यादा फीडिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब अगर हम उसको खरीद रहे हैं 2000 रुपये में और बेचने जाएंगे तो वो 20 से 25 हज़ार में अगर जा रही है तो आपको काफ़ी प्रॉफिट इसमें मिलेगा। ये हमारा मेन प्लान है, पेंसिल स्केच है, जहाँ पे हम वर्टिकल लेयरिंग करेंगे। नीचे सबसे पहले वो फिश को रख रहे हैं पॉन्ड बनाकर, बीच में हेंस रख रहे हैं और ऊपर वाला जो एरिया बना रहे हैं वहाँ पर गोट रख रहे हैं। साइड में गोट्स रहेंगी, बीच में गैलरी छोड़ दी जाएगी ताकि उसमें अगर फीडिंग वगैरह के लिए किसी को जाना है तो ईजियर हो और हेंस को उससे दिक्कत नहीं हो जो फीसेस वगैरह गिरेंगी। और जो ऊपर वाला पाइप हम बनाएंगे, ऊपर वाला फ्लोर जो बनाएंगे उसको स्टील से बनाएंगे ताकि उसमें छोटे बहुत ब्लॉक्स रखिए जिससे सिर्फ यूरिन पास हो सके। फीसेस के लिए हम पाइप लगाएंगे अलग से। रोमिंग एरिया जो गोट्स का साइड में होगा वहाँ पर हम वो पीसेस जो है वर्मी कंपोस्ट ऐसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए और भी बेनिफिट उसमें मिलेंगे। उसी रोमिंग एरिया में साइड बाय साइड ट्रीज भी लगा सकते हैं और ट्रीज में हम साख का ट्री यूज़ करेंगे तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है, जो अप्रॉक्स 120 का ही आता है।
लेकिन जब 7 to 8 ईयर बाद वो 1 लाख तक का जाता है। ये इसका 3D डायग्राम है, जिसमें नीचे पॉन्ड में हमने फिशेस रखी हैं, बीच में हेल्थ है, ऊपर जाने के लिए बोट्स हैं, बोट्स वगैरह के लिए एरिया बनाया है। और ये मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटजी है कि मतलब हम सबसे पहले अवेयरनेस देंगे। हमारे जो फार्म है हमने खोला है उसके लिए सबसे ज़्यादा अवेयरनेस और एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए हम किस किस को टारगेट करेंगे? जो स्मॉल फार्म होल्डर्स हैं कि हमारे पास आए, बकरा जो है वो खरीदें, और बिग जो कस्टमर्स हैं वो भी खरीदेंगे। शादी है, कोई ओकेशन है, उनको ज़रूरत है, होलसेलर्स वगैरह। और इसका प्रॉफिट जो है ना गोट में 60 to 65% है, हैन में 40 to 50% है, फिश में 50 to 55% है, क्योंकि ये बहुत कम इनपुट में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देता है। और जिस तरीके से अलग अलग इंटीग्रेटेड मतलब ही होता है सभी चीज़ों को एक साथ मिला करके, फिर जब हम जो प्रॉफिट गेन करते हैं वो, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट यूनिट से हमें प्रॉफिट मिल रहा है, वहाँ से भी, और गोट फार्मिंग से भी हमें मिल रहा है, हेन फार्मिंग से भी मिल रहा है, और फिशरीज तो सबसे ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि वहाँ पे जो उनका कॉस्ट ऑफ फीडिंग है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जा रहा है, क्योंकि जो फीकल मैटर है वो गोट्स का वो वहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, और यूरिन जो होता है वो भी 60 to 70% उनका फीडिंग परसेंटेज डिक्रीज कर देता है, और यही है। मैम केवीके में मैम है, मैम नीचे हैन है, ऊपर नीचे फिशेज है, ऊपर हैन है, बोट का नहीं है लेकिन मैम। यस मैम, ऊपर बोट का नहीं है लेकिन हैंस का है। वो 3 स्टोरीज में नहीं है, वो सिंगल में ही है, साइड बाय साइड में है, बट नॉट इन 3 स्टोरीज। मैम 3 स्टोरीज इसमें नहीं है, डबल स्टोरी का है मैम। लैंड कम लगेगा, इसमें यूज कम होगा लैंड का, प्रोडक्टिव हिसाब से। यस मैम। सिस्टम को पॉन्ड के ऊपर रखने से क्या प्रॉफिट होता है? सर जो उसकी फीसेस है जो उसमें पॉन्ड में जाएगी, तो उससे जो फिशेस का कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, फीडिंग का जो फिशेस का कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा 40 to 60%। मैम अगर जो ऊपर रख रहे हैं तो हेल्थ को बॉयलर एज अ बॉयलर रखेंगे, एक्स पर्पस के लिए नहीं यूज नो मैम, मैम इट्स रिड्यूसेस 40 to 60%। नो मैम, नो मैम, मैम सिर्फ हेल्थ की होगी, गोट के लिए अलग था। मैम हेल्थ के लिए तो अलग से देखा ना। अच्छी तो यस मैम, हेल्थ की फीड तो मैम अच्छी देंगे। लेकिन जो आपका ये ना आइडिया है तो स्मॉल एग्रीकल्चरशिप, तो ये स्मॉल नहीं आएगा, ये बड़ा स्मॉल में। सर ऐसा भी कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं एक साथ ही स्टैब्लिश किया जाए, फिश और हेल्थ को भी कर सकते हैं, उसके बाद जब एक्सपैंड हो रहा है तब हम और आगे भी कर सकते हैं। यस सर। नो मैम, मैम सब्सिडीज वगैरह है फिशेज के लिए 60 to 70%। Thank you, Tamanna and team, for a marvelous presentation. Now, I would like to call Ubayd Sharif Khan to present his idea on beekeeping and honey production. Put your hands together for that.
आज हम लेकर आए हैं ऐसे ज़बरदस्त एग्री रिलेटेड बिजनेस आइडियाज़ जो कि आप शुरू करके बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। एग्रीकल्चर सिर्फ खेती बाड़ी तक सीमित नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो बहुत ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, जो हमको सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। Good afternoon, respected HOD ma'am, respected judges, teachers, and all my friends. My name is Oais Jalil Khan from 3rd year BSc Honours Agriculture. Standing in front of you to express my small ideas related to beekeeping and honey production. So, सबसे पहले मधुमक्खियों को देख के क्या आता है सब दिमाग में? शहद? नहीं, वो होता है एक डर। लेकिन क्या आपको पता है ये डर के साथ खेलकर भी एक नई करियर अपॉर्चुनिटी बना सकता है, और ये इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग को नई जॉब्स और हम लोग को पैसा कमाने का एक ढंग प्रोवाइड करा सकता है। तो सबसे पहले पैसा तो इम्पोर्टेंट है ही देखा जाए तो, और यहाँ पे हम लोग को ये भी है कि कम इनपुट से ज़्यादा कमाना है, तो ऑब्वियसली ये बिजनेस से रिलेटेड ही आइडिया है। तो बी कीपिंग हनी प्रोडक्शन में हनी तो सब लोग प्रोड्यूस करते ही हैं। सो किसी को पता है रॉयल जेली क्या होता है? नहीं, किसी को नहीं पता, क्योंकि ये इंडिया में प्रैक्टिस ही नहीं किया जाता। ज़्यादातर लोग बस बाहर वाले जितने देश के हैं सब लोग रॉयल जेली, बी वेनम क्या क्या निकालते हैं। बस हम लोग को मेन फोकस होता है कि हम लोग बस हनी निकालने हो गया हम लोग का काम, बाकी उसका कोई मतलब नहीं हम लोग को कि हम लोग को और भी उससे कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ हम लोग निकाल सकते हैं, कोई प्रॉफिट कमा सकते हैं। नहीं, बस हम लोग को है बस शहद निकालो, बस हो गया। 2% फार्मर है, शायद 2% से भी कम जो जानते होंगे। अब रॉयल जेली जैसा नाम वैसा दाम, 50,000 पर केजी का होता है। वैसे ये मिल्की सब्सटेंस होता है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये प्रेपर होता है जब लार्वा क्या कहते हैं उसमें अपने आर्टिफिशियल हाइट पे जाता है तो इसको सिर्फ क्वीन फीड करती है, और अगर इस लार्वे को हम लोग निकाल लेते हैं तो जो हम लोग का सब्सटेंस बचता है उसको ही बोलते हैं रॉयल जेली। स्टार्टअप रिक्वायरमेंट्स तो मेन ऑब्वियसली बात है कि करना ही पड़ता है। सो अगर हम लोग देखा जाए तो आर्टिफिशियल हाइट जो कि 4,000 रुपीज़ की आ जाती है, लेकिन अगर इसमें स्टेट सब्सिडी मिलती है जो कि 3600 तक हम लोग को मिल जाती है। सो अगर देखा जाए तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ 1 बॉक्स सिर्फ 400 रुपये है। कैन यू बिलीव? सिर्फ 400। अगर हम लोग प्रोडक्शन, अगर हम लोग का अच्छा सीजन चल रहा है और क्या कहते हैं सब चीज़ सही रहा और प्रोडक्शन अच्छा है, तो रॉयल जेली 50 ग्राम पर हाइट निकलती है, यानी 50 ग्राम पर हाइट। इसका मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर एक बॉक्स से भी आपकी स्टार्टअप है तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। हनी तो ठीक ही है, बस उसमें फोकस नहीं है। 20 से 30 किलो पर हाइट निकल सकता है, इससे भी मिलता है। बी वैक्स है, 8 स्केल्स ऑफ वैक्स इन 12 आवर, ये भी बहुत तेजी में क्रिएट होता है। बी वेनम जो कम निकलता है लेकिन अच्छा खासा बिकता है। हनी 30 किलो अगर हम लोग हनी निकलता है पर हाइट से, और उसका 500 रुपये मार्केट प्राइस है, तो 15,000 तो उसका ऐसे ही हो रहा है। और अगर रॉयल जेली हम लोग निकालते हैं जिसका मार्केट प्राइस है 50,000, अगर वो हम लोग को एक बॉक्स से 500 ग्राम मिल रहा है तो उसका 25,000 हो सकता है। तो 25,000, 15,000, 40,000 पर बॉक्स हुआ। अगर हम लोग का स्टार्टअप 23 बॉक्स से है तो सोचिए आपका 9,20,000 हो सकता है सिर्फ बी कीपिंग से। देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है हनी जिसमें 80% ऑफ शुगर है, 20% ऑफ वाटर, और राइट हैंड साइड में रॉयल जेली जिसमें 60% ऑफ वाटर, 40% एंड प्रोटीन्स एंड मिनरल्स होता है। इसीलिए रॉयल जेली बहुत ज़्यादा महंगा होता है। रॉयल जेली प्रिपेयर आर्टिफिशियल सेंस में हम लोग कर सकते हैं मेनली, और इसको ज़्यादातर लोग आजकल ग्राफ्टिंग बोल रहे हैं। अपना लार्वे को पहले उसमें आर्टिफिशियल में डालना है, और जो वर्कर्स होते हैं हनी बी जो वर्कर्स होते हैं वो लाके उस पर फीड करते हैं, जिससे हनी वैक्स बनता है। वो हनी वैक्स रॉयल जेली में कन्वर्ट हो जाता है। और हमारे ओपिनियन से तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। पहली बात तो इसकी डिमांड पूरे साल रहती है, और जो शुगर अवॉइड करते हैं, स्पेशली जिनको मोटा नहीं होना, वो तो यही सोचेंगे ना कि हनी को अवॉइड किया जाए। और इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल कंटेंट भी होता है, और इसका एक मेरिट ये है कि जल्दी ख़राब नहीं होता। ये इसका एक वो है बॉडी जो जिसमें हाई बॉडीज दिख रहा है, फ्लोर है, और बॉटम स्टैंड है। बॉटम स्टैंड में पॉलन वगैरह आ जाते हैं, जिसको हम लोग उसको भी बेच सकते हैं।
बस इसमें हम लोग को चैलेंजेस ये हो सकते हैं, लोकेशन ऑफ साइट जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, नॉइस पोल्यूशन, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स एक ऐसी चीज़ है जो हर लेवल पे जिसकी बात हो रही है। पेस्टिसाइड्स हर तरीके से हम लोग को नुकसान कर रही है, हम लोग की हेल्थ को। इवन अगर बी उसको एक बार भी खा लेती है तो उसका जीवन वहीं पे समाप्त हो जाता है। इसको ओवरकम करने के लिए यही है कि पेस्टिसाइड्स का यूज़ करें और जो साइड सिलेक्शन वो सही करें, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर एंड नेक्टर फ्रॉम हनी प्रोडक्शन। प्रोडक्ट्स ऑफ बी कीपिंग, जैसे कि रॉयल जेली और हनी तो है ही, उसके साथ बी पॉलन, बी वैक्स, प्रोपोलिस, ऑर्गेनिक हनी एंड हनी वाटर। सो जो हम लोग यहाँ पे सिस्टर्स भी बैठी हैं उनको एक बात बताना चाहूँगा, रॉयल जेली में जो उसके प्रोडक्ट्स निकलते हैं सबसे ज़्यादा उसमें सीरम जो आप लोग के फेशियल में यूज़ होता है, और मॉइस्चराइजर और एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट्स भी होता है। और जो हम लोग के ज़्यादा एज वाले, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ, उनकी झुर्रियाँ तो आने लगती है समय समय पर, तो अब झुर्रियाँ आ रही हैं उसको कम करने का भी तो कोई प्रोग्राम होना चाहिए ना। तो इसके लिए एक रॉयल जेली मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है जो उसको बहुत हद तक कम कर सकता है। तो ये था एक छोटा सा प्लान जिसको हम लोग स्टार्ट करके मतलब बहुत कम लागत है इस पर और अच्छा खासा हम लोग इस पर कमा सकते हैं। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? सर करना है, स्टार्टअप नहीं है ना सर पैसा होगा तो कर लेते। सर 40,000 की स्टार्टअप है सर, अभी स्टूडेंट लाइफ में 40,000 तो नहीं है ना सर। बहुत सर मैं भाई तो उसके लिए बोला, उसके लिए हम लोग को प्रॉपर साइट सिलेक्शन करना पड़ेगा। मैम अगर किसी फार्मर से हम लोग बात कर सकते हैं तो क्या अपनी रजिस्ट में बेसिकली ये रजिस्ट में रखे जाते हैं। अगर हम लोग उनसे बोल दें कि हम लोग को रखना है तो उसके लिए हम लोग अगर 2-4 हज़ार दे देंगे तो जो हम लोग का जैसे कि देख रहे हैं 40,000 लागत है, तो अगर ये मान के चलिए 50,000 पहुँच जाता है तो कोई इतना वो नहीं है। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है साइट स्ट्रक्चर में जहाँ का? सर यहाँ पे सर ये है कि बेसिकली इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, लखनऊ है, ऑब्वियसली बात है, तो सर यहाँ पे उसको जो हम लोग को प्रॉपर फूल होते हैं वो मिल नहीं पाते हैं। कौन सी सीजन में सबसे ज़्यादा मिलता है? सर ये जब मस्टर्ड लगता है सर उसमें सबसे ज़्यादा रहता है सर। ऑफ लेकिन सर ऑफ सीजन तो रॉयल जेली तो ऑफ सीजन भी प्रोड्यूस हो रही है ना, हनी ऑन सीजन प्रोड्यूस होता है, लेकिन रॉयल जेली जो मेन फोकस है, मेन सेंटर वेटेड है, वो तो ऑफ सीजन भी प्रोड्यूस हो रही है। मैम उस रॉयल जेली प्रोड्यूस करने के लिए इतना उसमें नहीं लगता क्योंकि हनी 20-30 kg लगता है। सर मैम सर्वाइवल के लिए तो आप थोड़ा बहुत मेंटेन करना पड़ेगा ना। ऑफ सीजन में अगर ऑफ सीजन में अगर हम लोग लखनऊ में कौन ऐसी किसी बी कीपर को जानती हो तो दूसरे साथ सर ऐसा सर मैं नहीं they move their boxes यस सर this area to Bihar and Kashmir। सर उसके लिए स्टार्टअप कहाँ है? नहीं मैं बता रहा हूँ, एक बार आपको पता होना चाहिए ओके सर। इस एरिया में पॉल्यूशन और इसकी वजह से नेक्टर नहीं मिलता है। यस सर। they move their boxes to outskirts in Bihar and लीची विभाग में they उधर कश्मीर ले गया। उसका प्राइस भी देखिए 9,20,000 है, अभी तक किसी की स्टार्टअप में है 9,20,000 प्रॉफिट। डायरेक्ट प्रॉफिट किसकी में बताइए आप, किसी के खरीदेगा कौन, जिसको कौन सीरम लगाता है। अभी यहाँ पे हम लोग काले हो रहे हैं, टैन के लिए हम लोग नहीं खरीदते। मैम अभी स्टार्ट थैंक यू मैम।
Today I am presenting this particular business idea. My idea is customer dairy. Customer brand dairy business. And next one is SKU objective line business to provide unscientific best quality of dairy product और इनकम ज़्यादा इनकम जनरेट करेगा और जो हमारा प्रोडक्ट है वो मार्केट में ज़्यादा सेल करेंगे ज़्यादा हम वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये प्लान हमारा ये है कि हम अप्रॉक्स 1 एकड़ लेट हम ले सकते हैं, कुछ अपने पास हो। दूसरा है कि परचेज हम पंजाब और हरियाणा से अच्छी नस्लों की ब्रीड हम खरीद सकते हैं, परचेज बेस्ट क्वालिटी के सीरीज खरीद सकते हैं, लेबर हायर करें, साइड और मैनेजमेंट बढ़िया करें हम फोकस ऑन वैल्यू एडिशन और इजी वे में हम सही प्रोडक्ट को अवेलेबल करा सकें। फंडिंग एंड मैनेजमेंट जो अमाउंट है जो हमारा बिजनेस का स्टार्टअप है मतलब अप्रॉक्स 25 लाख रख सकते हैं। रिसर्च हमारे पास 5 लाख और इनिशिएटिव और ट्रेड फ्लोर्स देकर हम 10 लाख और गवर्नमेंट फंड से हम सब्सिडी पूरा हम 10 लाख रख सकते हैं जो पीएम मुद्रा योजना के थ्रू है। ये है हमारा प्रोसेसर बिजनेस मॉडल डेयरी प्लांट। ये हमारा प्लांट है जो मेन प्लांट है हमारा डेयरी फार्म, वहाँ से हम अलग अलग कॉलोनी में अपने प्रोडक्ट खुद बनाएंगे। वहाँ से हम अपने डेयरी फार्म से हम डेयरी प्रोडक्ट को हर एक खुद का सप्लाई करते हैं। वहाँ से हम जो अगर खुद से जो बचे हैं वहाँ तो किसी कंपनी से हम कॉन्टेक्ट करेंगे तो हम अपना जो बचे हैं उसको वहाँ दे सकेंगे जिससे हमारा कोई नुकसान ना हो। मार्केटिंग स्ट्रेटजी है हमारी, हम जो भी प्रोडक्ट बनाए हैं तो उसका हाइजीन ध्यान में रखते हुए बनाए और जो लोग डेली के कस्टमर है उनको कुछ अच्छे बेनिफिट दें, जो हमारे मेम्बरशिप है उनको डिस्काउंट दें और जो हमारे एम्प्लॉय और जो लेबर रहेंगे उनको कुछ डिस्काउंट करेंगे। जैसे बल्क क्वान्टिटी के जैसे ऑर्डर आ गए हमारे पास नई प्रोडक्ट की हम उसको होम डिलीवरी कर सकते हैं एज अ मैक्सिमम डिलीवरी चार्ज। हेल्थ और वेल्थ का ध्यान रख के हम अपने फूड प्रोवाइड करेंगे। एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थ्रू हम अपना जो हमारा बिजनेस है उसको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे जैसा कि हमारे प्रोडक्ट जो है बढ़िया हो। Thank you. Any questions? ऊपर करो ऊपर साइड नीचे बैठ और ऊपर करो। हाँ रुको ऊपर नीचे आओ। ये जो 25 लाख का और दिखा रहे हो अब इधर 5 लाख रुपए लगा रहे हो और रेट से 10 लाख रुपए उधार है। सर वहाँ से ले सकते हैं ना, रेट से ले सकते हैं, सर्विस ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट ठीक है। थैंक यू। Please encourage our participants with a huge round of applause. Once again, an entrepreneur is someone who jumps off a cliff and builds a plane on the way down, said Reid Hoffman. Innovation in agriculture is not just about technology. It's about creating value from
every seed planted and every crop harvested. With these lines, I would like to call our last participant, Shreyans Kumar from BTech Agriculture, to present on the topic, Driven Approach to Fair Market Pricing and Direct Sales. Please put your hands together for Shreyans Kumar. Very good afternoon to everyone, and my name is Shreyans Kumar, and I am from Punjab, and I am currently studying in BTech Agriculture first year of the semester, and my idea was empowering farmer. So my topic is empowering farmer, a tech-driven approach to fair market pricing and direct sale. आज के समय पे क्या हो रहा है कि जो हमारे MSP, आप सबने MSP का नाम सुना होगा, तो जो हमारा आज के समय पे जो भी हमारे स्टेट्स हैं वो 6% ही MSP ग्रांट कर पाते हैं और बाकी के 94% जो MSP ग्रांट नहीं कर पाते। तो उनके लिए मैंने एक सिंपल सा ऐप बनाया है, मतलब ऐप बनाया है, इन फ्यूचर में सोच रहा हूँ ऐप बनाने का। तो इस ऐप में उस प्रॉब्लम को फिक्स किया जाएगा इन फ्यूचर। सो पहली प्रॉब्लम क्या आती है, राइट प्राइस फॉर सेल्स। इसमें होता क्या है, जो प्राइवेट ट्रेडर्स और मिडिल मैन होते हैं वो सारा का सारा इंटरेस्ट ले लेते हैं, ना कि जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती है उन्हें भी फिक्स प्राइस नहीं मिलता और जो किसान होते हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं होता। तो इसमें होता क्या है कि जो मिडिल मैन और प्राइवेट ट्रेडर वो सारा का सारा इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो इसमें मैंने ये भी बनाया है कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है और कोई भी कॉर्पोरेटिव कंपनी वो सीधा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर पाए फार्मर्स को, ये मेरा पहला स्टेप है। एंड सेकंड स्टेप इज, आज के समय पे मेरे जो ऐप है वो सबसे ज़्यादा फेवर करता है स्मॉल होल्डर फार्मर को। तो सेकंड चीज़ क्या है हमारी, कंसल्टिंग। हम जाके ग्राउंड लेवल पे जाके कंसल्ट करेंगे उन फार्मर्स को जो जागरूक नहीं है, जो अवेयर नहीं है, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए और भी बहुत कुछ किया जाए। सो उसमें कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। और जो स्मॉल होल्डर्स फार्मर होते हैं उनके लिए एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो लोग जो होते हैं, पहले बात तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बहुत पीछे होते हैं, और सेकंड चीज़ आज भी वहीं पर जहाँ पर पहले पास्ट में खेती होती थी तो आज भी वहीं पर वैसी ही खेती होती है, तो उनको चेंज करने की ज़रूरत है। और थर्ड चीज़ मैंने ये देखी फार्मर्स में कि जो जैसे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, जो स्मॉल होल्डर्स फार्मर्स होते हैं उनके में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है। तो वो सब करने के लिए मैंने इस ऐप को बनाया। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि जो पॉलिसीज आती है नई जो सब्सिडीज आती है उससे भी अवेयर हो स्मॉल होल्डर्स फार्मर, जो कि अवेयर नहीं होते। काफ़ी सारे गाँव में जाओ तो उसमें पता लगता है कि कैसे कैसे फार्मर्स हैं और कैसे कैसे वो लोग खेती कर रहे हैं। वो आज भी बैल और ये सब चलाते हैं, कल्टीवेटर और ट्रैक्टर के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है आज भी। सो माय थर्ड स्टेप इज वेदर रिलेटेड। सो वेदर रिलेटेड ये चीज़ तो सारे ऐप कर रहे हैं, पर मेरे में यूनिकनेस क्या है कि इसके साथ हम उनको सजेशन भी देंगे इस ऐप में कि सजेशन भी देंगे कि इस ऐप को यूज़ करें और इसमें ये प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर वहाँ पर ये इतनी जागरूकता नहीं है तो ये ऐप वहाँ पर कैसे पहुँचेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम अपनी पहले तो अगर मुझे इस ऐप को नेशनलाइज भी करना हुआ तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। और उसके बाद बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज और बहुत सारी सरकारी कॉर्पोरेट्स लिमिटेड उनके साथ टाई अप करके हम वो भी कर सकते हैं। एंड फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, किसी को अगर फर्टिलाइजर्स का भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है किसी छोटे लेवल पे, तो उनको जो है बहुत बड़ी कंपनीज को कम्पीट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो हमारा ऐप क्या करेगा, जो छोटे
छोटे छोटे स्मॉल होल्डर्स कॉर्पोरेटिव और फर्टिलाइजर्स हैं उनको जो है उनकी फर्टिलाइजर और किसानों के फर्टिलाइजर किसानों को जो भी ज़रूरत है वो उन तक पहुँचे। जो स्मॉल होल्डर्स कॉपरेटिव्स हैं और जो स्मॉल होल्डर्स फार्मर्स हैं उन तक कॉन्टैक्ट बना रह सके। सो पहले भी ये केस स्टडी है। तो पहले डिजिटल ग्रीन इंडिया नाम का एक ऐप था, उसने भी 1.9 आज के समय में उसके 1.9 मिलियन सब्सक्राइबर है आई थिंक। तो मैंने उसमें देखा कि बहुत सारे जो उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो स्मॉल होल्डर्स से ही हैं, क्योंकि वो लोग जो स्मॉल होल्डर्स को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट माई आइडिया एंड इट्स माई प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू इंट्रोड्यूस माई आइडिया। Any other question? Any question है? ये जो आप ऐप का निर्माण करेंगे, मतलब इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे जो भी है, तो इससे इम्पैक्ट क्या रहेगा सोसाइटी पे? दैट इज फॉर योर ओन, दैट इज फॉर योर, उसमें आपको फायदा होगा, राइट? ऐसा आप क्या करेंगे कि उससे फार्मर्स को भी बेनिफिट हो, या कोई और अपना ऐप बना सकता है, किस तरह से बताइए। सर मैंने अभी आपको ये सर मैंने आपको अभी बताया था कि कंसल्टेंसी, मैंने बोला था कि अभी ग्राउंड लेवल पे जाके जो भी हमारी टीम होगी वो ग्राउंड लेवल पे जाके उन फार्मर्स को देखेगी कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और आपने बताया कि बिजनेस के बारे में बताया कि जो भी अगर ऐप किसी ने स्टार्ट करना हुआ इसके पर्पज से, तो सर पहली बात तो ये, अगर आज के समय पे जैसे एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा बूम पे है, तो हमारा एग्रीप्रेन्योरशिप के लिए भी हम कई सारे इवेंट्स और वर्कशॉप कर सकते हैं, जिससे ताकि लोग अवेयर हो और बहुत ज़्यादा चीज़ों पे आगे बढ़े। Other questions? Thank you to all our participants for their incredible presentations. Now our judges will deliberate and make their decisions. But before we do this, I would like to invite our HOD ma'am to present a plant of Palme green selector to our chief guest, Professor Alvina Farooqui ma'am. Very warm afternoon to one and all. Professor Sabra Siddiqui, Head, Department of Agriculture, esteemed faculty members, supporting staff, budding entrepreneurs, and my dear students. At the outset, I must congratulate the department and the organizing team for organizing such a activity which was actually the need of the hour. So as our government itself is working on the same lines of Atmanirbhar Bharat, so the entire university is moving in the right direction, and to bring to the kind information of all the budding entrepreneurs. Are you aware of our own incubation center at Integral University? How many of you are aware? Raise your hands. We already have an incubation center, the Center for Incubation and Artificial Development at Integral University itself. CA, are you aware? No, you are not aware. Why? I raised this question deliberately because I understand not only you, 90% of the students, they don't know about the entire infrastructure that they have in their own university. So please be informed that we have well-established CET, which is registered with the start in UP. Okay? So all of the ideas which you presented can be incubated. We have very good incubatees over here, more than 30, who are doing extremely well. And to bring to your kind information, most of them are agri-based, food and agri-based. Okay? So if you want to have ideas, if you want to get mentorship, you can get it. Get
center is being run under the mentorship of the Executive Director, Dr. Nida Fatima. She is doing exceedingly well, and they are geared up. They are inviting proposals. Yesterday only there was this hunt, and even my research scholar, he incubated, and his idea was so much liked by the panel that they are helping him to register his own company. Okay? So all the ideas which was presented seem feasible to me, and you can get the support of the CED at Integral University. And I was also glad to know that 2 of the participants have already established their business. Many congratulations. You should be passing on the information to your department. They will feel proud. So just whatever you are doing, just inform the department as well. Then looking at the title of the proposals, it was good, but just my humble suggestion that what I felt was that it was a slightly slackness of the innovation, the creativity. All of you targeted the ideas which was already established, isn't it? So try to just give more thought and try to just add the touch of your own creativity. And try to recognize the societal problems. The last one I like. Why? Because throughout the presentation, one thing was going on in my mind. Because as the educated part of the society, our responsibility to shoulder and to help the farmers is very important. Because farmers are the backbone of the agricultural system, but due to the lack of education and the innovative technology, they suffer a lot, isn't it? So as an agricultural engineer, you should be trying to develop a business in which farmers are the important component. Okay? So I would suggest those budding entrepreneurs who are aiming to bring up such businesses, try to get in the farmers in your system. That would be a great boon to the society. Thank you, and I once again congratulate the entire department, the organizing team, and it was my proud privilege to be a part of this great event. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for your encouraging words. Now, I would like to request our HOD ma'am to come and address our participants and audience with some motivation. And please put hands together for HOD ma'am. So, a very good afternoon to all of you. And I know that you all must be eagerly waiting for the results to come. But let me say that the program itself was more important than the results. It is definitely that someone will be getting first position, someone will be getting the second, someone will be the last. But it doesn't matter. What matters was that you presented your ideas well. What mattered was that you were listened by your friends, your seniors, your teachers. And what matters most is that you were appreciated by the teachers, and definitely, as Dr. Alvina said, please visit the incubation center, I will say, and we have a coordinator, Dr. Rahil and Dr. Suhail also, who are the coordinators for the incubation center, departmental coordinators. So I would also ask them, because our own incubation center is doing so well, and as Dr. Alvina already said, that I think Nutty Village and Mitti Se and I think around 5 or 6 are agri-based startups that are being incubated by the Integral University itself. So how this begins? कैसे शुरू होता है ये सब? बीज से ही तो शुरू होता है। पौधा जो है तो ऐसे ही आपके छोटे आइडियाज बड़े आइडियाज में कन्वर्ट होते हैं, ऐसे ही छोटी एंटरप्रेन्योरशिप बड़े एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट होती है। तो यू ऑलवेज बिगिन from a very small seed. So if something is going on in your mind, just think over it, do research well, then you will get the opportunities. There is some dialogue I remember ना कि क्या सारी कायनात साजिश करती है फिर आपको वहाँ पे मिलाने के लिए. So that will only happen until unless you have a passion for that. So I thank you, Professor Alvina, for your kind presence. And I must congratulate Dr. Ruqayya, Dr. Mustafa, and the judges, the faculty members over here, the students. We will have this type of programs, and please do not hesitate. Come up with your ideas.
Thank you. Thank you so much, ma'am, for your motivating words. And now, the moment we've all been waiting for. It's time to announce the winners. Assalamu alaikum and very good evening to all of you. And first of all, I would like to thank to our HOD man, Dr. Saba Siddiqui, under whose supervision we have just conducted such type of event. And I am also thankful to Dr. Alvina Farooqi ma'am, who just given us a time, precious time for us. And I am also thankful to all participants. और ये देख लीजिए, अगर जो लोग जीतेंगे उनके लिए तो खुशी की बात है, और जो अगर नहीं जीत पाए तो हारे नहीं हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इंशाअल्लाह हम लोगों ने शुरुआत की है जी। इस बार मुझे वसीम साहब का शेर याद आया, मैं अगर आप नहीं भी कहते हो तो शेर सुनाऊँ कि उनके लिए, उनका शेर है आप लोगों के लिए, यंग जनरेशन के लिए, कि नए दौर के चरागो तुम्हें कितनी हसरतों से, नए दौर के चरागो तुम्हें कितनी हसरतों से वो मकाम तक रहे हैं जहां रोशनी ना पहुंचे। तो आपको वो चीज़ करके दिखानी तो नहीं हुई है। तो मैं बहुत, मुझे खुशी की बात है कि मेरी जो को कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर रुकैया, इन्होंने बहुत साथ दिया, हर टाइम हर पल साथ में खड़ी रही, और जितने भी फैकल्टी मेम्बर्स हैं, दीदी मैम, सलमान सर और जो यहाँ है या नहीं, सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। और डीन सर का शुक्रगुजार हूँ, को हमेशा परमिशन देते हैं। और जो हमारे एंकर्स हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने हमें कोऑपरेट किया है। तो मैं इसी के साथ मैं अनाउंस करता हूँ हमारे विनर्स का। देखिए सभी लोग जीते हैं, बस ये है कि कुछ लोगों ने कुछ बेहतर किया है। जो दूसरे विनर हैं हमारे, जो सेकंड जो प्राइज जिनको जा रहा है, जो सेकंड विनर है वो है उवैस जलील। मैम से रिक्वेस्ट करूँगा अलविना फारूकी मैम से कि वो, और सबा मैम से कि वो आए और इस बच्चे की हौसला अफजाई करें। Congratulations. Now it's time to announce the first winner, and who is? Any guesses? Any guess? No guesses. आपका क्या जजमेंट था ऑडियंस का? कोई एक्सपेक्टेशन, कोई गैस? कोई नहीं बोलेगा। The first winner is Shriyansh Kumar from Vision Agriculture Engineering. Shriyansh Kumar, well done बेटा। और जो आप लोगों को मार्क्स मिले हैं वो जजेस ने आप जो डायमेंशंस थे उन 5 डायमेंशंस की बेस पर आपको मार्क्स मिले हैं। जिसने सबसे ज़्यादा सिक्योर किए हैं वो विनर है। मैं डॉक्टर रुकैया को बुलाऊंगा कि आए यहाँ पर और वोट ऑफ थैंक्स करें।